it is in proportion to their population. In the case of OBC, it is still much below their population share. So if someone complains too loudly, please remind them, भाई 56% है, reservation सिर्फ 42 है, इतना जोर से क्यों रो रहे हो तुम? That's the problem in this country. You see? So it's like, look at this room. We have what? 1, 2, 3, 4, 5 women maybe in this room. And suppose 5 more women come and sit in this room, and men start complaining, oh my God, so many women, there are no seats left for us. What will we do? आदमियों का क्या होगा इस दुनिया में? तो आप उन्हें क्या कहेंगे? भाई दिमाग खराब हो गया है क्या? पानी पी लो. You'll be all right. This is exactly what happens in this country. Those who are merely 15% in population in Telangana, at the country level, I would think probably 18 to 20%. That is my guess about the Hindu upper caste. My guess is about 18 to 20%, but we have sociologists here. Maybe you have a better guess. Those who are 18 to 20% in population, but those who occupy 70% or 80% of chairs everywhere, if you take 5 chairs away from them, they start crying. Oh my God, the world has destroyed. Oh my God, दुनिया खत्म हो गई. अब क्या बचेगा? अब क्या होगा? भगवान प्रलय आ गई अब तो. This is what happens in this country. So, it's very good that caste census has taken place. It is good that reservations have been revised. But that is just a very small beginning. जो मैं यहाँ बात करने आया हूँ, वो सिर्फ ये बात कहने नहीं आया हूँ कि बहुत अच्छा काम हो गया, शानदार हो गया, बधाई, बहुत अच्छा काम कर दिया, नहीं. ये बात कहने के लिए मुझे दिल्ली से आने की जरूरत नहीं थी. ये तो हमारे साथियों ने कर दी होगी, बधाई वगैरह आपने दे दिया. आई एम हियर टू रिमाइंड यू ऑफ द चैलेंज. This is a very small step. Even on reservation, please do not be complacent. I am very sure this will be challenged in the court. I am very sure there will be a stay given by some court, High Court or Supreme Court, that the demand of putting it in the 9th schedule, someone will go and say this breaches 50% limit. Some court will say, of course, we have to give stay, because somehow in this country, judiciary also gets very, very active on some issues. On other issues, they never get active. वो जब उमर खालिद का जमानत का केस आता है तो 5 साल तक कुछ नहीं होता. ये केस जब आएगा, आप देखिएगा 5 हफ्ते के अंदर ये हाईएस्ट जुडिशरी इंटरवीन करेगी, स्टे भी मिल जाएगा इस पे. So it's going to be a long struggle. Please do not think that this has happened. Please do not think that this will go smoothly. It's a small thing. It is just the beginning of the battle. मगर मेरे लिए अगर ये सब हो जाता है, मान लीजिए तेलंगाना का 42% रिजर्वेशन हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद आपको चैलेंज आएगी कि जो कागज पे है उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करवाने की चैलेंज आएगी. वो भी नहीं होगा. हमारे दोस्त अभी बता रहे थे कि एक्चुअली जो अभी तक रिजर्वेशन तेलंगाना में था, जिसको 7% मिलना चाहिए था, उसको एक्चुअली अब तक 3% मिला है. सो दैट्स अनदर चैलेंज. बट आई एम सेइंग इफ ऑल दिस इज डन, even then that does not end our challenge. That is just the beginning of challenge. Because please remember, and I should say this very, very clearly, I am not here to defend the case for OBCs. जैसे मैंने कहा, मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे राहुल गांधी से कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे OBC से भी कोई मोहब्बत नहीं है. जैसे सब हैं, आपको ये एप्लीकेशन दे के OBC पैदा नहीं हुए थे, बाय चांस आप पैदा, मैं भी कोई एप्लीकेशन नहीं मैंने दिया था कि भगवान को कि मेरे को OBC पैदा करो. एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है, पैदा हो गए, इसमें व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट अबाउट इट. वी आर हियर
फॉर जस्टिस। शुरू में मैंने कहा था हम एक प्रिंसिपल के लिए हैं, किसी बैनर के लिए नहीं, किसी लीडर के लिए नहीं, किसी कास्ट के लिए नहीं। अगर मैं स्कैवेंजिंग क्लास में पैदा होता तब भी इतना ही अच्छा था, एक्सीडेंट से ब्राह्मण पैदा हो सकता था तब भी वैसा ही था। देयर इज नथिंग नाइस और बैड अबाउट बीइंग बोर्न एनीवेयर। एंड वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स टू माई माइंड इज टू ट्राई एंड मेक वर्च्यू आउट ऑफ एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ये मैं देखता हूं दुनिया में आजकल ये चल गया है, जहां पैदा हो गए उसका ऐसे झंडा उठा के चलते हैं कि जैसे मैंने एप्लीकेशन देके यहां पैदा हुआ था, या कोई यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मैंने एडमिशन टेस्ट दिया था फिर मैं उसके अंदर एडमिशन लिया हूं। अरे यार ये क्यों करते हो? तो जो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है बाई चांस यहां सब चीजों में चलता है, सिर्फ कास्ट में नहीं, देश में भी कि साहब इंडिया में पैदा हो गए मेरा भारत महान, अरे पाकिस्तान में पैदा हो जाते तो खड़े होके कहते मेरा पाकिस्तान महान। ऊपर वाले ने दिमाग भी दिया है भाई, थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल हम करें, है ना। सो टू मी द चैलेंज इज टू स्टैंड फॉर सम प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कभी हमारे हक में जाते हैं, कभी हमारे खिलाफ भी जाते हैं, और आप प्रिंसिपल्स की लड़ाई कर रहे हैं या नहीं उसका इम्तिहान तब होता है जब प्रिंसिपल आपके खिलाफ जाए और आप उसको सपोर्ट करें। That is the real test of your principles. When something goes against you and you still stand up and say, yes, I support it because in principle this is correct. I am for social justice. So I have said all the nice things so far. Now I'll say some of the harsh things. When